various spirits visiting this. Okay, so today we will discuss a very important part of your pharmacology and very important chapter. And let me tell you this, that this is the one of the most important as well as interesting chapters also, because today we'll discuss about morphine. Okay, there is a reason why it is called God's own medicine. ठीक है, एक मेडिसिन है, एक दवाई है जिसको हम पॉपुलरली गॉड्स ओन मेडिसिन भी बोलते हैं. गॉड्स ओन मेडिसिन, यू नो दैट कि कितना इफ़ेक्टिव हुआ रहेगा, वो कितना महत्वपूर्ण वो रहता होगा, इसीलिए उसको गॉड्स ओन मेडिसिन बोला जाता है. सो टुडेज टॉपिक इज मॉर्फिन. Today's topic is morphine, also known as God's own medicine. God's own medicine. आज का जो पूरा का पूरा टॉपिक रहेगा वो है मॉर्फिन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मॉर्फिन. सो बेसिकली फर्स्ट लेट मी टेल यू, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज Algesia? What is this term? Algesia. What do you mean by this term? Algesia. Algesia. Yes? Pain. Pain. Sure. Allergy has isn't it? What do you mean by analgesia then? The term Algesia का मतलब है pain. Can you define pain? Pain is a uncomfortable, and unacceptable sensation. Uncomfortable, unacceptable sensation which is caused by external or internal stimuli, which is noxious in nature. अगर हम इसको बोलें, what is Algesia? Algesia means pain. And pain is nothing but it is an uncomfortable and unacceptable, okay, sensation, uncomfortable and acceptable sensation which is caused by either internal or external noxious stimuli. जब कभी भी कोई noxious stimuli होगा जो या तो एक्सटर्नल हो सकता है या फिर आपके शरीर के अंदरूनी हिस्सों में पाया जाता है, डेवलप हो सकता है, उसी स्टिमुली के द्वारा जो सेंसेशन पैदा होगा, ठीक है, और वो जो सेंसेशन है आपके लिए सही नहीं रहेगा. यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट, यू कैन नॉट बी कंफर्टेबल विथ इट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसेशंस. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसेशंस which you are all comfortable with. For example, feeling happy, okay, feeling excited, feeling amused, okay, cracking a joke. Whenever your friends crack a joke, you suddenly feel excited and laughing, happy. So all these are these are all sensations. But this particular sensation is not happy or not comfortable. It's uncomfortable and unacceptable. That is why this pain or Algesia needs to be avoided, because it is unacceptable and unagreeable, uncomfortable. It needs to be avoided. So how can you avoid this? How can you avoid this? You have to put a drug over here. You have to take drug, and that drug which works against Algesia is called analgesia.
SIC, analgesic drug. So what do you mean by analgesic? Analgesic is nothing but the drugs which usually are used for the treatment of algesia or for the control of algesia. Am I clear or not? Now coming to the next point over here, what is analgesic? Analgesic is the drug, okay, which is used for treatment of or control, you can write, control of algesia. What is this? Control of algesia. What is algesia? हम अभी अभी पढ़ चुके हैं पेन. तो एनाल्जेसिक्स आर नथिंग बट द ड्रग विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट और कंट्रोल ऑफ एल्जेसिया. उसी नाम से ही वो डेवलप हुआ है. जैसे हम बोलते हैं एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ठीक है. तो पेन जो है दैट इज योर एल्जेसिया, और जो दवाई उसके अगेंस्ट काम करे, उसको कंट्रोल करे, उसको बोलेंगे एनाल्जेसिया. ऑल द एनाल्जेसिक ड्रग्स or the drugs which are used for the treatment are called analgesic. So all the analgesic drugs are classified into two broad categories. आपने डेफिनेशन समझा किसको एनाल्जेसिक बोलते हैं. अब जितने भी एनाल्जेसिक ड्रग हैं उनको दो ग्रुप में खास करके डिवाइड किया गया है. पहला है मॉर्फिन लाइक और नार्कोटिक or opioid analgesics. Okay, morphine like, narcotic or opioid analgesics, first category. And second, non-narcotic, okay, that is non-opioid, इसका ठीक opposite, non-opioid, non-narcotic, non-opioid or aspirin-like analgesics. समझ में आ रहा है? पूरे को पूरे एनाल्जेसिक्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया समझने के लिए. पहला कैटेगरी है मॉर्फिन लाइक और नार्कोटिक और ओपियोइड एनाल्जेसिक. इसको हम नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी बोलते हैं, इसको हम ओपियोइड एनाल्जेसिक भी बोलते हैं, और इसको हम मॉर्फिन लाइक एनाल्जेसिक भी बोलते हैं. सिमिलरली ठीक उसके कॉन्ट्रास्ट में, उसके अपोजिट, जो उसके उसी के तरह पेन को रिलीव कर रहा है, लेकिन उसके अपोजिट मेथड से वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा काम अपना कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से वो काम कर रहा है. नॉन नार्कोटिक और नॉन ओपियोइड और एस्पिरिन लाइक एनाल्जेसिक्स. यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज़, एक एक ड्रग यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, ठीक है. एक एक ड्रग यहाँ पे इंडिकेट किया गया है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉर्फिन और यहाँ पे एस्पिरिन. ये इसलिए हुआ है क्योंकि यही ड्रग इस कैटेगरी के प्रोटोटाइप हैं. यही ड्रग इस कैटेगरी के प्रोटोटाइप हैं. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोटाइप? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोटाइप? Prototypes are nothing but the very first and foremost development in the field of research. कोई भी क्षेत्र में, कोई भी फील्ड में सबसे पहले जो किसी नेचर के चीज़ का, फॉर एग्जांपल हम एक दवाई डेवलप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एंटी HIV ड्रग, और अभी तक का उसका कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं है, कंप्लीटली क्योर हुआ नहीं है. उसमें बहुत सारे ड्रग्स हैं जो सप्रेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट 100% क्योर अभी तक मिला नहीं है. लेकिन अगर उसमें हम एक रिसर्च रिवॉल्यूशन लाएं और सही से रिसर्च करें और उसमें एक कमाल कर दें, जादूगरी कर दें, और एक ऐसा दवाई बना दें जो सबसे पहला ड्रग बने और जिसका काम हो गया HIV को जड़ से ख़त्म कर दे, तो ये अपने फील्ड में सबसे पहला हुआ. उससे पहले कोई ऐसा नहीं था. इसीलिए उस प्रकार के दवाई को हम उस फील्ड के लिए बोलेंगे प्रोटोटाइप. तो जब भी आपका ओपन एनाल्जेसिक साइंस के, मेडिकल साइंस के कारण या फिर फार्मास्यूटिकल साइंस के कारण डेवलप होता गया,
बाद में बहुत सारे इसके भाई बहन निकल गए, कोडीन, थेबेइन, फोल्कोडीन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन सबसे पहला जो ड्रग रिसर्च होके एक मार्केट में आया, जो इस्तेमाल में आया, दैट इज ए मॉर्फिन. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप. Whereas in this field it is also prototype. Is that clear? Okay? तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज पढ़ रहे हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स और मॉर्फिन लाइक एनाल्जेसिक्स. ओके, जिसको हम बोलते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक्स. इसका दूसरा नाम क्या है? मॉर्फिन लाइक. जब भी पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि बहुत सारी चीजें साथ ही साथ रिवीजन हो जाए. ओके, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स और मॉर्फिन लाइक एनाल्जेसिक्स. तो एनाल्जेसिक्स हम पढ़ चुके हैं, द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एल्जेसिया. ओके, और पेन. तो ये जो है एक्चुअली यहाँ पे आप टर्म देख सकते हो ओपियोइड, और यहाँ पे आप टर्म देख सकते हो नार्कोटिक्स. ओपियोइड जो टर्म है, ठीक है, या फिर इसको ओपिएट्स भी बोला जाता है. ओपिएट्स भी बोला जाता है. ये टर्म इसके साथ जुड़ा क्यों है? इसको हम सिर्फ एनाल्जेसिक क्यों नहीं बोल सकते? ओपियोइड एनाल्जेसिक क्यों बोलते हैं? ओपियोइड, ओपिएट्स, ये एक्चुअली डेवलप हुआ सबसे पहला. मैंने अभी अभी क्या बताया आपको? कौन सा प्रोटोटाइप है? ये है प्रोटोटाइप. मतलब ये भाई साहब संसार में पहले आए हैं इस रूप में. किस रूप में? नार्कोटिक एनाल्जेसिक के रूप में. तो मॉर्फिन जो है ये फर्स्टली एंड फॉरमोस्टली सबसे पहले ओपियम पोपाय से हमको मिला. एक तरह का फ्रूट है उसका, उसमें से एक जूसी, आप एक साथ बोल सकते हो मिल्की वाइट जूस. ओके, सिक्रेशंस उसके किसके? ओपियम पोपाय. द बॉटनिकल नेम इज पापावेर somniferum. The botanical name is Papaver somniferum. It's a plant. Earlier it was used, okay, earlier it were used for analgesic purpose. तो ये जो ओपिएट है यानी कि ओपियोइड है, ये इसमें मॉर्फिन जो है सबसे पहले इस्तेमाल हुआ करता था, और एक प्लांट से मिलता था वो, दैट इज ओपियम पोपाय, जिसका बॉटनिकल नेम है पापावेर सोमनीफेरम. एक फ्रूट होता है जिसमें से एक वाइट मिल्की जूस कलेक्ट किया जाता है, और उसी जूस को ड्राई करके हम इस्तेमाल करते थे. पहले तो वैसे ही इस्तेमाल करते थे जब जहाँ कहीं भी पेन होता था, जहाँ कहीं भी एनाल्जेसिया होता था. तो इसीलिए क्योंकि ये ओपियम पोपाय ओपिएट है और ओपिएट से हो गया ओपियोइड, इसीलिए धीरे धीरे इसका नामकरण आके आज हम किस नाम से इसको पहचानते हैं? ओपियोइड एनाल्जेसिक्स और ओपिएट्स. इज दैट क्लियर? Another thing, why it is called narcotic analgesic? अगर ओपियम पोपाय में उसमें क्या है आपका? मॉर्फिन पाया गया है इस मिल्की जूस में, और इसीलिए ओपियम से हो गया ओपिएट्स, ओपियोइड्स एंड ओपियोइड एनाल्जेसिक नाम आ गया. तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस नार्कोटिक? नार्कोटिक नाम क्यों पड़ा? द टर्म नार्कोटिक, सॉरी, द टर्म नार्कोटिक, ये नाम इसके साथ क्यों जुड़ रहा है? मैं वही पूछना चाहता हूं, मैं वही जानना चाहता हूं. नार्कोटिक का मतलब है स्लीप फॉर्मिंग और इम्पैक्ट ऑन, वेरी गुड, impact on CNS. The term narcotic means it is associated with only those kind of drugs जिसका impact आपके CNS में है, और ये एक स्लीप फॉर्मिंग, या फिर ऐसे बोल सकते हैं
एडिक्शन फॉर्मिंग ड्रग है, एडिक्शन फ्रॉम फॉर्मिंग ड्रग है। यहाँ पे स्लीप का कारण ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा स्लीप ही हो जाए, मतलब नींद में क्या बोलते हैं उसको, तो नींद में पेशेंट जो है एक तरह से इन्वॉल्व हो जाए जस्ट लाइक योर नेचुरल स्लीप। नो, ये यहाँ पे नार्कोटिक का मतलब है एडिक्शन फॉर्मिंग, क्योंकि वो सीएनएस में काम कर रहा है, स्लीप प्रोड्यूस होता है, बट नॉट एज इफेक्टिव एज योर सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, क्योंकि सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स भी खास करके कौन, दोनों में से कौन, सिडेटिव्स के हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक्स दोनों में अंतर ही वही है, हाँ कि ना, लेकिन उससे स्लीप प्रोड्यूसिंग थोड़ा कम रहेगा, इसका ज़्यादा ध्यान स्लीप में कम और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कहाँ रहेगा, पेन रिलीविंग, पेन को ज़्यादा कंट्रोल करेगा। ठीक, अभी तक सही चल रहे हैं, कहीं पे कोई दिक्कत है, ठीक है ना। सो ये दो टर्म आपको समझ में आ रहे हैं क्यों इसका नाम ऐसे हुआ, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, क्योंकि अगर इसको समझोगे तो फिर जब आप नॉन नार्कोटिक पढ़ोगे ना तो उसमें भी उसका ठीक ऑपोजिट होगा, क्योंकि ये स्लीप प्रोड्यूसिंग नहीं है, क्योंकि ये सीएनएस में इम्पैक्ट नहीं डालता, इसलिए इसको बोला गया नॉन नार्कोटिक और नॉन ओपिएट्स, क्योंकि ओपिएट से डेवलप नहीं होता है। इसीलिए ये पूरा ढांचा आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे क्लास में क्या होता है ना, टीचर ऐसे ही डेफिनेशन वगैरह डायरेक्ट ओपिएट में आ जाते हैं, लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा पूरा को पूरा एनाल्जेसिक जो है वो दो ग्रुप में डिवाइड हुआ है। कुछ हिस्सा जो है, कुछ प्रकार के ड्रग वो क्या हैं, वो ओपिएट वाले हैं, और कुछ है नॉन ओपिएट। ठीक है, वो क्यों बोला गया ये हम समझ चुके हैं, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। क्लासिफिकेशन ऑफ ओपिएट एनाल्जेसिक्स। Classification of opioid analgesics. Okay, classification of opioid analgesic. In this classification, let me dictate you something. Write down. The classification of opioid analgesics, basically, all the opioid analgesics are classified into we can add third one later on, but first write down two, and that is natural alkaloids. Okay, natural alkaloids कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ से, कौन से प्लांट से, नेचुरल है इसीलिए तो, कौन से प्लांट से, ओपियम पोपाई, और ऑल्सो नोन एज पापावेर सोमनिफेरम. The examples are in natural category, examples are morphine, codeine, heroin, etc. The examples are morphine, codeine, thevein, etc. Okay. Then here we can go for synthetic opioid analgesics, and in this the examples are pethidine, methadone. यस कुछ बोल रहे थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, इन केस ऑफ योर व्हाट इज दैट, जनरल एनेस्थेसिया. कौन सा ओपिएट जो है प्री एनेस्थेटिक काम करता है, दैट इज नॉट ओपिएट, दैट इज डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स पर्टिकुलरली. The drug, the opioid drug which is used for pre-anesthetics, उसमें हम पढ़े भी थे फेंटानिल. फेंटानिल ये क्या है, ये सिंथेटिक ओपियोइड एनाल्जेसिक है, फेंटानिल. ओके, ट्रामाडोल, हाँ डाइक्लोफेन, आपका क्या बोलते हो उसको, जो एक ड्रग आता है जेरोडोल पीटी. जेरोडोल पीटी एक मोस्ट पॉपुलर है. जेरोडोल का बहुत सारे कॉम्बो आते हैं, जेरोडोल एसपी, जेरोडोल पीटी, जेरोडोल आता है कि नहीं आता है, पी आता है पैरासीटामोल के साथ,
तो उसमें जो पीटी है, जेराडोल पीटी, उसमें पैरासीटामोल के साथ आपका पूरा का पूरा ट्रामाडोल भी रहता है। यही ट्रामाडोल, दैट इज योर सिंथेटिक ओपियोइड एनाल्जेसिक। मॉर्फिन, कोडीन, थेवेन एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ एक्स्ट्रा ड्रग आपको मिले आप इसमें ऐड करिएगा। ओके, मैंने आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है फॉर योर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू एंड मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने आपको आपके सामने शो कर दिया है, दिखा दिया आपको। समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. ये एक स्लाइड आपको समझ में आ रहा है? ऑल ऑपर्ड्स आर नेचुरल एंड सिंथेटिक। आप देख सकते हो, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मूविंग ऑन टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इसके इफेक्ट हैं। सबसे पहले तो सीएनएस में, सीएनएस में ये क्या करता है, बोथ स्टिमुलेंट और डिप्रेशन की तरह काम करता है। क्या करता है? स्टिमुलेंट और डिप्रेशन की तरह काम करता है, दोनों काम करता है। और ये बेसिकली म्यू रिसेप्टर के मीडिएटेड होता है। म्यू रिसेप्टर एक तरह का रिसेप्टर जिसको हम बोलते हैं ओपियोइड रिसेप्टर। ठीक है, ये सीएनएस में हो रहा है। और भी इसके इम्पैक्ट हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो एनाल्जेसिया शो करता है। और कहाँ पे काम करता है, कौन बताएगा? पेरिफेरी की सेंटर में? सेंटर में। और ये भी होता है म्यू, आपके कापा एंड डेल्टा, ये तीनों रिसेप्टर के माध्यम से होता है, म्यू, कापा, डेल्टा, एनाल्जेसिया प्रॉपर्टी। द थर्ड वन दैट इज मूड एंड सब्जेक्टिव चेंजेस। फॉर एग्जांपल मूड चेंजेस। आपको कभी कोई दर्द या फिर कोई इंजरी हुआ हो, ये सुन लो, तो क्या महसूस होता है आप लोगों को? हाउ डू यू फील? यू फील बैड और गुड? स्मॉल इंजरी में भी बैड फील करते हो? मैं वो फ्रैक्चर वगैरह नहीं बोल रहा हूँ। हर एक इंजरी के साथ दो चीजें होते हैं, पहला तो फिजिकल पेन होता है और दूसरा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होता है। समझो पहले बात को, थोड़ा स्लो जाओ। कोई भी इंजरी हो तो दो चीजें आपके साथ घटते हैं। पहला जो है, जो जहाँ पे जो चोट लगा है, इंजरी हुआ है, जहाँ पे भी चोट लगा है इंजरी हुआ है। इंजरी मतलब टिश्यू डैमेज हुआ है। लेकिन साथ ही साथ और एक चीज भी होता है, क्या? इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। अरे यार मैं तो सही सलामत था, अभी बाइक से गिर गया, मेरा पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। अरे यार अभी अभी मेरे को बाहर घूमने जाना है, टिकट कंफर्म हो चुका था, लेकिन मेरा जो है क्या, अभी अभी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया है, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है, मेरे मुंह में लग गया है, मुंह खराब हो गया है, मेरे नाक टूट गए हैं, मेरे दांत निकल गए हैं। इंजरी तो हो रहा है, साथ ही साथ आपको इमोशनली भी डिस्टर्ब कर रहा है। जब आप कोई नॉन ओपियोइड खाओगे, नॉन ओपियोइड मैंने एग्जांपल क्या दिया था, नॉन ओपियोइड, एस्पिरिन, ये सब खाते हो आप, डाइक्लोफिनेक खाते हो कि नहीं खाते हो, एसिक्लोफिनेक, ये क्या करते हैं? ये सिर्फ फिजिकल इंजरी मतलब पेन में काम करते हैं। और ये लोकली काम करते हैं। जहाँ पे इंजरी हुआ है, जहाँ पे पेन डेवलप हो रहा है, यहाँ पे टक्कर लगा, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ, मतलब इसी एरिया में ये लोग काम करेंगे और पेन को रिड्यूस करेंगे। लेकिन ये भाई साहब जो हैं हमारे हीरो, आज के महानायक मॉर्फिन, ये क्या करता है? ये पेरीफेरी में तो काम करेगा, पेन को तो रिलीव करेगा, साथ ही साथ आपके जो इमोशन है उसको भी स्टेबलाइज करेगा। यही चीज मैंने यहां पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या? कि जो आपको इमोशनल डिस्टरबेंस हो रहा था इंजरी के कारण, ये उसको भी ठीक करेगा और आपको अच्छा महसूस कराएगा। Yes. आपको अच्छा महसूस कराएगा। देख सकते हो कितना पावरफुल है। एक तो दर्द घटा रहा है, पेन को रिलीव कर रहा है, साथ ही साथ जो इमोशनली आप थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, आपको उससे भी मुक्त कराएगा और अच्छा महसूस कराएगा। आपको मूड को एलिवेट करेगा, मूड को एलिवेट करेगा, उसको
मूड एलिवेट कराएगा। और ये कैसे कर पाएगा? क्योंकि वो सीएनएस पे काम कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए मॉर्फिन को हम गॉड्स ओन मेडिसिन बोलते हैं। इतना कड़क दवाई है कि बहुत बड़े बड़े इंजरी, मतलब आप देख सकते हो एनाल्जेसिक में, खास करके एस्पिरिन लाइक ड्रग्स और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक में, आपके जो मीडियम लो टू मीडियम पेन ही इसमें ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ से मीडियम और मॉडरेट टू सीवियर पेन भी ठीक हो सकता है। इसीलिए ये वार में ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था। वार में गोली लगा, ठीक है, हाथ पैर टूट गए, कंपाउंड फ्रैक्चर पूरा अलग हो गए हैं, या फिर हाथ कंधे से निकल गया है, कितना बड़ा फ्रैक्चर है, कितना बड़ा एक इंजरी है, ठीक है, छोटा मोटा तो इंजरी नहीं है ना, गोली लगा है, पूरा गोली सीने से आर पार हो गया है, या फिर पेट से आर पार हो गया है, तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड इंजरी है उसमें ये ड्रग काम आएगा। कौन? मॉर्फिन और उसके भाई बहन, मॉर्फिन एंड इट्स कॉन्जिनर्स, जो आपने पढ़ा, मॉर्फिन, कोडीन, थेवेन, आगे ना फेंटेनिल एटसेट्रा एटसेट्रा। इज दैट क्लियर? तो इतना पावरफुल है। अगर कोई पूछे कि स्मॉल से मीडियम और मॉडरेट तक दवाई पेन का क्या दवाई है, ये कौन सा कैटेगरी है, कैटेगरी का नाम बताओ ना, नॉन नार्कोटिक्स। और जब मॉडरेट टू सीवियर, बहुत सीवियर पेन होगा, तो उसमें आपका नार्कोटिक्स। क्यों? क्योंकि वहां पे नो डाउट ये सीवियर पेन को भी सबलाइम करता है, उसको रिड्यूस करता है, साथ ही साथ मूड को भी एलिवेट करता है। एम आई क्लियर? ये कितना अच्छा हो कि दर्द तो पता ना चले, उसके साथ आपको हैप्पी भी महसूस हो, आपको एक स्टेबल, एक इमोशनली कंटेंट फील कराए। अच्छा है ना? उससे ये बेटर है कि नहीं है? लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है ये जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया यहाँ पे, एडिक्शन कराता है। क्या करता है? एडिक्शन कराता है। एम आई क्लियर? साथ ही साथ मूड चेंज होगा। ओके, ये पढ़ चुके हैं। उसके साथ रेस्पिरेटरी सेंटर सप्रेस करेगा, रेस्पिरेटरी सेंटर सप्रेस करेगा। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, फार्माकोलॉजिकल एक्शन कंटिन्यूड। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर उसको भी चेंज करेगा, ठीक है। भासोमोटर सेंटर इसको भी इम्पैक्ट डालेगा। बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, एफएसएच, टीएच, एलएच, एसीटीएच, इनको लो करेगा, इनको घटाएगा, इनके कॉन्सेंट्रेशंस घटाएगा। ओके, so these are the some pharmacological actions, these are the some pharmacological actions, that's it। समझ में आया? मैं पिछले स्लाइड में जा रहा हूँ। फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन कौन से सिस्टम में, कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स में ये अपना काम शो कर रहा है। खास करके आप देखोगे सीएनएस में ही काम कर रहा है। ये जो पेन रिलीव कर रहा है वो कहाँ पे काम कर रहा है? सीएनएस पे। स्टिमुलेट भी कर रहा है, डिप्रेस भी कर रहा है। मूड चेंजेस होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर में सप्रेशन आएगा, ठीक है, एबनॉर्मल ब्रीदिंग होगा, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर बॉडी थोड़ा सा मतलब कूल फील करेगा, टेम्परेचर डाउन होगा उसमें। वैसोमोटर सेंटर और हार्मोनल चेंजेस होगा, मतलब खास करके कुछ हार्मोन जो आप सामने देख सकते हो इसमें कमी आएंगी, ये इसमें सिक्रेशंस की कमी आएंगी। इज दैट क्लियर? और साथ ही साथ ये वोमिटिंग सेंटर में भी काम करता है, वोमिटिंग सेंटर में भी काम करता है, और ये वोमिटिंग कराता है, वोमिटिंग कराता है, वोमिटिंग इंड्यूस करता है। वोमिटिंग सेंटर कौन सा है? CTZ, केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये यहाँ पे वोमिटिंग इंड्यूस कराता है, वोमिटिंग इंड्यूस कराता है। ओके, अंडरस्टूड? नाउ लेट्स कम टू द साइड इफेक्ट्स।
साइड इफेक्ट्स में जो जो हम पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी, डिप्रेशन पढ़े ना अभी, वहां पे काम कर रहा है, एडिक्शन, उसके साथ आई में क्या काम करेगा, मायोसिस, सॉरी मायोसिस कराएगा, इरेगुलर हार्टबीट, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, खास करके एल्डरली में शो करेगा। ओके, इनफैक्ट मायोसिस करेगा मॉर्फिन पॉइजनिंग में। अगर मॉर्फिन ओवरडोज हो जाए, मॉर्फिन ओवरडोज, कोई हॉलीवुड मूवी वगैरह में देखे होंगे, मॉर्फिन जो ड्रग्स लेते हैं, मॉर्फिन इसको अब्यूज़ करते हैं, ड्रग्स अब्यूज़ करते हैं ना, उनमें आप देखोगे, टॉर्च लगा करके देखोगे आंखों में, बहुत सारे मूवी में शो दिखाया गया है, Right. ये डायलेट नहीं करता है, Yes. पूरा स्क्वीज हो जाता है वो। हाँ, दैट इज कॉल्ड पिन पॉइंट प्यूपिल। मैं क्या बोल रहा हूँ पहले समझो, मॉर्फिन ओवरडोज होगा तो पिन पॉइंट प्यूपिल होगा। मॉर्फिन क्या कर रहा है, तो मॉर्फिन ओवरडोज मतलब मायोसिस मतलब बहुत छोटा हो जाएगा ना, इसको इतना छोटा हो जाएगा कि पूरा निडल के जैसा छोटा सा क्षेत्र दिखेगा आपको प्यूपिल में, दैट इज कॉल्ड पिन पॉइंट प्यूपिल। क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच ड्रग और व्हिच ओवरडोज ऑफ ड्रग कॉजेस पिन पॉइंट प्यूपिल, मॉर्फिन। ठीक है, अच्छा, कुछ नाम ऐसे भी होने चाहिए जो इसको, अगर मॉर्फिन किसी को ओवरडोज हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं मॉर्फिन पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं, मॉर्फिन पॉइजनिंग में क्या दवाई दोगे, उसको ठीक करोगे, इसमें दोगे मॉर्फिन एंटागोनिस्ट। आता है क्वेश्चन, मॉर्फिन एंटागोनिस्ट एग्जांपल क्या है, नैंड्रोलोन, नैलोक्सोन, नालोक्सोन, नांड्रोलोन, ये दोनों मन रखो। नांट्रेलोन भी है, नालोक्सोन एंड नांड्रोलोन, ये दोनों मन रखो। नालोक्सोन, नैंड्रोलोन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा रिव्यू कर लेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एल्जेसिया, दो टर्म हमारे सामने रखा गया, एंड दैट इज एल्जेसिया। एल्जेसिया का मतलब है पेन, और इसी एल्जेसिया में एक अनकंफर्टेबल अनएक्सेप्टेबल सेंसेशन होता है, किसके द्वारा, नॉक्सियस स्टिमुली के द्वारा। क्योंकि एल्जेसिया का पेन है, लुक एट हियर एवरीवन प्लीज, एल्जेसिया का मतलब पेन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको ठीक करने के लिए जो दवाई होता है, दैट इज कॉल्ड एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स आर नथिंग बट drugs which are used for the treatment of algesia. All analgesic drugs are divided into two broad categories, that is morphine like narcotic or opioid analgesics, and here non-narcotic non-opioid like analgesics. इसके प्रोटोटाइप जो हैं that is morphine, और इसके प्रोटोटाइप जो हैं एस्पिरिन। इसीलिए इन्हीं नाम के अनुसार उसके पूरे को पूरे फैमिली को दर्शाया जाता है, पूरा कैटेगरी को दर्शाया जाता है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए हमने ये भी समझा कि जो ओपियोइड एनाल्जेसिक और नार्कोटिक एनाल्जेसिक में, ये ओपियोइड का नाम कहाँ से डेवलप होते हुए आया है, दैट इज ओपियम पोपाय, और ओपिएट्स और ओपियोइड्स, ये स्पेलिंग थोड़ा चेक करिएगा अभिजीत, एवरीबॉडी, ओके। और इसका जो बोटनिकल नेम है, दैट इज पापावेर सोमनिफेरन, अ प्लांट which produces its fruit and which gives a milky
वाइट जूस, और इसी जूस से हमको मिलता है पूरा का पूरा जो अल्कालॉइड्स जो होता है आपका मॉर्फिन, कोडीन, थेवेन, ये सब नेचुरल है, वहीं से मिलता है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये जो नार्कोटिक है, नार्कोटिक का मतलब है इम्पैक्ट ऑन CNS, स्लीप फॉर्मिंग और एडिशन फॉर्मिंग। फिर आगे बढ़ते हुए हमने क्लासिफिकेशन में गए, छोटा सा क्लासिफिकेशन है, इसके साथ और भी ड्रग आपको मिलेगा किताब में, लेकिन मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट ड्रग्स शो किया हुआ है, आप इसके साथ और ऐड कर सकते हो। 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरली जो पाया जा रहा है दैट इज योर मॉर्फिन, कोडीन, थेवेन, एंड हियर सिंथेटिक में पेथिडीन, मिथाडोन, फेंटानिल एंड ट्रामाडोल। ठीक है, ट्रामाडोल, ट्रामाडोल। नाउ फिर हमने एक्शन पढ़ा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट काम कहाँ पे है? CNS पे। सबसे इंपॉर्टेंट काम कहाँ पे है? CNS पे। और CNS को ये बोथ स्टिमुलेट भी करता है, डिप्रेस भी करता है। किसके माध्यम से? म्यू रिसेप्टर से। और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी दिखाया जाता है, उसका 3 प्रकार के रिसेप्टर हैं, म्यू, कापा, डेल्टा, उसी पे काम करता है। कोई अगर पूछे कि मॉर्फिन जो है आपके शरीर में कौन से रिसेप्टर में काम करता है और अपना एक्शन शो करता है, तो वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा इसके 3 अपने प्रकार के हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑपोइड रिसेप्टर। वो है म्यू, कापा, डेल्टा। म्यू, कापा, डेल्टा। और मॉर्फिन क्या है? इनका एगोनिस्ट है, इनका एगोनिस्ट है, हम पढ़ चुके हैं एगोनिस्ट। ये बाइंड होता है, इनको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, उसके बाद मूड चेंजेस कराएगा, मूड को भी एलिवेट कराएगा, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी सेंटर को डिस्टर्ब करेगा, उसको सप्रेस करेगा, एबनॉर्मल ब्रीदिंग कराएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए हमने ये भी देखा कि ये टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करेगा, बॉडी जो है टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करेगा, बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा सा डिक्रीज करेगा स्लाइटली, वैसोमोटर सेंटर डिस्टर्बेंस होगा, और कुछ हार्मोन को भी ये सप्रेस करेगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एटसेट्रा एटसेट्रा। वोमिटिंग सेंटर को भी ये स्टिमुलेट करता है और वोमिटिंग कराता है। इज दैट क्लियर? साथ ही साथ हमने साइड इफेक्ट्स देखा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एडिक्शन, मायोसिस, इरेगुलर हार्ट बीट, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जब मॉर्फिन ओवरडोज हो जाए तो वहाँ पे एक स्थिति डेवलप होता है जिसको बोलते हैं मॉर्फिन पॉइजनिंग। कोई अगर ज़्यादा खा ले, खास करके वेस्टर्न कंट्री में ये बहुत दिखाई देता है, जहाँ पे ड्रग अब्यूज़ होता है। हमारे यहाँ भी हो रहा है, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे ड्रग अब्यूज़ आज तक शायद ना फैला हो। वहाँ पे भी लोग बहुत सारे ड्रग्स अब्यूज़ कर रहे हैं। ड्रग अब्यूज़ का क्या मतलब है? मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो रहा है? उनको ओवरडोज भी हो रहा है, पॉइजनिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉइजनिंग हो रहा है। तो जब कोई आपके पास पेशेंट आए जो ड्रग ओवरडोज ले लिया है, पॉइजनिंग हो गया है, तो उसको आप ठीक नहीं करोगे तो सीधा क्या होगा? अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा तो रेस्पिरेशन सही से नहीं चलेगा तो डेथ नहीं होगा। तो इसीलिए वहाँ पे 2 दवाई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, जो क्या काम करते हैं? मॉर्फिन एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं। और मॉर्फिन एंटागोनिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है, दैट इज नालोक्सोन एंड नंड्रोलोन। ओके, so this is all about today's class. In your later class we'll discuss about another chapters. अगर किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। In your medicinal chemistry have you studied this part? This is first in your ecology. So morphine का मतलब समझ में आ रहा है, इसको ऑपोइड क्यों बोला गया समझ में आ रहा है, ये कहाँ से डेवलप होता हुआ यहाँ तक पहुँचा है समझ में आ रहा है। इसके कुछ भाई बहन मैंने आपको बताए हैं, कुछ कॉन्जीनर्स बताए हैं और उसके एक्शन बताए हैं। अच्छा, कोई अगर पूछे थेरापेटिक यूज क्या बोलोगे? Is very body to टू ट्रीट, one. वेरी गुड, मॉडरेट टू सीवियर, अलग अलग कंडीशंस में आप इसको दे सकते हो। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैंने बताया, सॉरी दिस पार्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। एनी डाउट यू कैन आस्क।